سب سے پہلے جو دوست یہاں آئے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، آپ نے واضح پیغام بھیجا ہے کہ یہاں کے عوام، ملیر کے عوام، کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ فیبروری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے، آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے، تیر پہ مہر لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت، ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے، اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس شہر کی ہم قسمت بدل دیں گے، اور ساتھ ساتھ پورا پاکستان کی قسمت انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے بدلیں گے۔ میں آج ایک بار پھر ہمیں کھیل کے میدان میں موجود ہے۔ 2-3 دن پہلے ہمارا پریس کانفرنس ہو رہا تھا، تو آپ میں سے کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کھیل کے میدان بنائیں گے؟ تو اب ہم نے نہ صرف یہاں ابراہیم حیدری میں یہ کھیل کا میدان بنایا ہے، نہ صرف گزری میں یا لیاری میں، انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اسی قسم کا فیسلٹی بنائیں گے، جیسے یہاں ملیر کے عوام کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس قسم کے موقع دینے چاہتے ہیں جہاں وہ کوئی مثبت کام میں، کوئی صحیح کام میں، کوئی اچھا کام میں، جیسے سپورٹس ہے، کھیل ہے، ان چیزوں میں دلچسپی لے، نہ کہ کوئی غلط راستے پہ چلے جائے۔ یہ صرف ایک کھیل کے میدان نہیں ہے، یہاں ضرور فٹ بال گراؤنڈ کا نام تو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہاں کراچی کے نوجوانوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا فیسلٹی بھی موجود ہے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوا سکیں، تاکہ ان کو روزگار کے موقع ملے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ حکومت کا موقع اگر ہمیں دیا جائے تو ہم نے اپنے نوجوانوں جو اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات بھی برے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب عوامی حکومت ہوگا، جب پی پی کا حکومت ہوگا، تو اسی قسم کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جس سے ہم نوجوانوں کو وہ سکلز بھی دیں گے اور ان کو روزگار بھی دلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں اتنا خوش ہوا کہ یہاں ہمارا ٹیچر ٹریننگ کا بھی فیسلٹی موجود ہے، جس سے وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں، ٹیچرز کو وہ سکلز دیتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف ٹیچرز بن سکیں، اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکے، مگر جب وہ ٹیچرز بنے تو ہمارے بچوں کو کس طریقے سے سکھانا ہے، کیسے سکھانا ہے، وہ بھی سب کچھ ادھر ہی
यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा। वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा, और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपको दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहां इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहां कॉलेज भी मौजूद है, जहां हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सके, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके, ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है, और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा। ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है, मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर होगा। चेयरमैन साहब, इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स हैं वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा, और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है, तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब, आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसर खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की। तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही है कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मेरा ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था JDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था। वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया, उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007-8 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है, मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं। मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है, अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी।
लेकिन इसके साथ साथ 15 साल से आपके गुजरा रहे उनके पास नेता पंजाब के इदारे हैं, LDA, KDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर कॉर्पोरेशन अब हो गया है। कितनी मुश्किलात होंगी, मुझसे ज़्यादा आपको शायद मेयर साहब ने बता दी होंगी कि आपकी पार्टी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। इसी तरह महकमा खजाना में एक बाजारी सिस्टम वो भी चलता रहा, इसी तरह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट भाई मिसाइल का तो अगर आपने जिक्र करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में हैं, वो तो हर सूबे में हैं। और अगर हमने उन मिसाइल का हल नहीं करना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ, मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है कि जो हमारा वसाइल का हक है वो हमें नहीं दिया जाता। मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने हाथ पे बैठ जाए और कहूँ कि वसाइल तो नहीं है तो मैं काम ही ना करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मसला देखते हुए अपने तरीक़ेकार निकाले कि कैसे हम काम भी करें, वसाइल हो या ना हो। और आपने फिर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लीड ले ली, और चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कम्युनिकेशंस का, हेल्थ का, तालीम के इदारे हैं, वसाइल कम हो या ना हो, हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका निकाल के सर्विस डिलीवरी बेहतर किया है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि ना सिर्फ आपका सॉलिड वेस्ट में मगर आपका वाटर बोर्ड में तो बहुत सारे मसले हैं। अब हमने वो मसले हल करने हैं और कराची के अवाम को फायदे पहुंचाना है। एक इत्तेहाद बना है कल या बनवाया गया है, नवाज शरीफ, नून लीग और MQM ने मिलकर कराची में पीपल्स पार्टी का मुकाबले की तैयारी की है। और दूसरा सवाल ये है, आपने गुज़िश्ता दिनों बात कही कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो नून लीग वालों ने कहा या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जिससे बिलावल साहब का राब्ता है, वो इसी तरह ऐसी बातें हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको हरवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको हरवाया जाएगा। MQM और नून लीग वाला इत्तेहाद, यार आप उनसे पूछे, मुझे इस इत्तेहाद का नुकसान MQM को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सर, आप चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ अभी पिछले 1.25 साल उनके साथ रहे, अब वो खुद को एक जमहूरी जमात भी कहती है, लेकिन तासुर ये है कि वो इन आम इंतखाबात को में देर चाहती है। वो नहीं चाहते कि 18 फरवरी को, 8 फरवरी को जो है वो इंतखाब हो जाए। तो एक बड़ी सियासी जमात आखिर इंतखाब से क्यों भाग रही है? आप तो उनके वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी रहे हो, अब वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोई इलेक्शन से आप नहीं भाग सकेगा, और जस्टिस फायज़ ईसा ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस होंगे फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। जहाँ तक हमारा इत्तेहाद की बात है या साथ मिल के चलने की बात है, जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे। जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है, तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। यार अदम एतमाद को आप रजीम चेंज कहते हो। रजीम चेंज को अगर आपने देखना है तो आप लिबिया को देखे, आप इराक को देखे, आप नाकाम कोशिश जो सीरिया में हो रहे हैं वो देखे। हमारा अदम एतमाद जो जमहूरी तरीके से वजीर आजम को निकाला जाए, उसको आप इस लफ्ज से ना पुकारें। बिलावल साहब ये फरमा दीजिए कि PDM का वजूद रहा है या खत्म हो गया? एक सवाल तो ये था, दूसरा ये कि आप PDM का हिस्सा भी थे एक जमाने में, जो एक जमाने बहुत पुरानी बात हुई है। तो मतलब आप अब एक दूसरे पर तनकीद करके क्या उस इरा से जान छुड़ाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो एक तो हम बिला वजह तो तनकीद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई
आइन के हद की बात करता है या जमहूरियत के हद की बात करते हैं या अब मुआशी उनका पॉलिसी और मेरा पॉलिसी में फ़र्क हो, तो उसका ये नहीं मतलब कि हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, जायज़ तनकीद कर रहे हैं, वो तो हर किसी का हक है। जहाँ तक PDM की बात है, हमने PDM का बुनियाद रखा। अब फिर अपोजिशन में जब खान साहब वज़ीर आज़म था, हमने उस वक्त PDM छोड़ा था और उसके बाद वापस तो नहीं गए हैं। तो PDM के हवाले से या PDM के लिहाज से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछें। चेयरमैन साहब, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, तो लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मतलब ये है कि आप लाडला प्लेयर्स नहीं बन पा रहे? नहीं, हमारा तो हमने कभी ये नहीं सिफारिश की कि हमें सिलेक्ट करें। हमने इतना ही कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। ये आज का नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का बहुत ही पुराना मुतालबा है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा भी होती थी कि हमें बस लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिलवा दे और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। कामरान नज़ीर साहब, चलो, आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा? मेरे ख्याल में कुछ तो उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, जो भाग्य वो तो नहीं लेंगे। बिलावल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना साहब एक शिकवा करते नजर आते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, हमें जो है वो ये हुकूमत की तरफ ले गए थे। उसके बाद क्या आप जबरदस्ती उन्हें लेके गए थे? क्या जख्म दिया आपने उनको कि वो हर बार ये बात दोहराते हैं? मुझे अब मेरा ख्याल में आप ये सवाल मौलाना साहब से पूछे। हम ज़बरदस्ती किसी को हुकूमत में नहीं लेके जा सकते थे। हमने ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना ही हमने ज़बरदस्ती किसी को किसी और वज़ारत दिलवाए थे। अगर उस वक्त वो हमारे साथ वोट ना करते, अगर वो अदम एतमाद में साथ नहीं देते, हाउस टूटता और उसी वक्त इलेक्शन हो जाता। हुकूमत के दौरान किसी भी वक्त अगर कोई किसी में ये शौक था कि इलेक्शंस करवाने थे तो तब भी छोड़ सकते थे, इलेक्शंस करवा सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है, इलेक्शंस लड़ने का शौक तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। हम चाहे वो बाई इलेक्शंस थे, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस थे, चाहे वो पंजाब KP का सूबाई इलेक्शंस थे और आखिर चाहे वो जनरल इलेक्शंस थे, तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही होता था कि इलेक्शंस करो, हमने तो इलेक्शंस लड़ने हैं। दूसरे के मौक़िफ़ शायद उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। लास्ट क्वेश्चन। ये एक बार फिर मुल्क में 90 की दिहाई वाली बातें हो रही है कि इत्तेहाद बनाया जाए, और जिस तरह से इस्लामी जुम्मन इत्तेहाद बनाया गया था, वो इत्तेहाद भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था और अब भी यही कोशिश की जा रही है। तो कितना असर पड़ता है वोट बैंक में और आपके अपनी स्ट्रगल में? मेरा ख्याल में कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं, जो खुद ब खुद बनते हैं, वो अच्छे तरीके से सियासत भी कर सकते हैं, वो अपने वोट बैंक्स को भी साथ मिला सकते हैं, इसलिए वो कोई कंसेंसस सियासी सोच का बना के साथ मिलते हैं। जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो फिर वो जो इत्तेहाद में मौजूद है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होते हैं, और फिर वो जो वो इत्तेहाद बनाते हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा होते हैं।